So, all right, we discussed this. Like in English, we have subjects like I, we, you, they, he, she, it. In French, we have these subjects, and they are called les pronoms sujets. So, je is I. If we want to say I, that is je. You is tu. And the formal you is vous. Informal is tu. Formal is vous. Il is he. Al is she. L is she. O is informal we or one. Nu is formal we. Il is masculine they. Il is, just a minute. Let me. Il is masculine they and L is feminine they. So after that we discussed the verb être. Please mute your mic, everyone. Then we discussed the verb être. If you want to say I am, you will say je suis. If you want to say you are, that is tu es. He is, il est, she is, elle est, nous sommes, we are, vous êtes, you are, ils sont, they are, elles sont, they are. Uske baad, we discussed the verb avoir. That means to have. So it was like j'ai, I have, tu as, you have, il a, has, elle a, she has, nous avons, we have, vous avez, you have, ils ont, they have, elles ont, they have. So now I let you know. Now we'll do other type of verbs. Okay, so बच्चे see. Now we will learn the verbs in French. Okay, so the likewise in English we have regular verbs in French and irregular verbs in French. Okay, as you can see, it is written the verbs divided into two parts: le verbe régulier, a verb le verbe irrégulier. The regular verbs and irregular verbs. Okay, so the regular verbs are further divided into three parts, that is er ending, re ending, and ir ending. I repeat, the verbs are of two types: le verbe régulier, that is regular verb; the verb irrégulier, le verbe irrégulier, the irregular verbs. So the verbs are of three types: er ending, re ending, ir ending. Okay, so first we will learn er ending verbs. So बच्चे जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सारे जो verbs लिखे हुए हैं सबकी ending er से है. So that means all the verbs are er ending verbs. ठीक है? So first is, I'll just read it. Manger. These are the examples of er ending verbs. Manger, to eat. Habiter, to live. Aimer, to like. Just a minute, let me mute everyone. They don't feel like muting themselves. Habiter, to live. Aimer, to like. Adorer, to love. Écouter, to listen. Danser, to dance. Regarder, to watch. Donner, to give. Travailler, to work. Beta, if you feel like you're not understanding anything, you can make me pause and ask the question. Okay? You can turn on your mic and ask the question anytime. So as you can see, these all are the er ending verbs. So बच्चे see, सबसे पहले हमें क्या करना है? अच्छा देखिए बच्चे, सबसे पहले हमारे पास देखिए er ending verb है. एग्जाम्पल है parler. er से खत्म हो रहा है, जिसका मीनिंग है to speak. Parler means to speak. ठीक है?
सबसे पहले हमें ER कट कर देना है। अब ये ER एंडिंग वर्ब है, इसमें से हमने ER कट कर दिया, तो हमारे पास क्या रह गया? PARL। PARL तक रह गया ना, तो हम क्या करेंगे? अभिनव एंड यानी, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक्स। थैंक यू। ओके, सो हमारे पास रह गया PARL। सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल राइट ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन साइड, दैट इज श, त्यू, इल, एल, ओ हम इकट्ठा लिखते हैं क्योंकि आई विल लेट यू नो। नु, वी, वू, यू, इल एंड एल, दे। सो बच्चे सबसे पहले हम सारे सब्जेक्ट्स लिखेंगे। अगर मैंने कहना है आई स्पीक, बच्चे देखो जैसे इंग्लिश में होता है आई स्पीक, यू स्पीक, ही स्पीक, शी स्पीक, दे स्पीक, स्पीक सेम रहता है, बस सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं। बट फ्रेंच में क्या होता है? अगर आई स्पीक लिखना है तो अलग तरह की एंडिंग होगी, यू स्पीक लिखना है तो अलग, वी स्पीक अलग, यू दे स्पीक अलग, ठीक है? तो अगर मैंने आई स्पीक लिखना है तो सबसे पहले तो मैं ये PARL सबके साथ लिखूंगी, ठीक है? ब्लैक में लिखा हुआ है ना, तो ER कट करके PARL सबके साथ लिख दिया। जहां पर आई होगा आई विल ऐड E, with to I'll add ES, with ill L O, he she और informal V के साथ again I will add E in the end, with nu I'll add ONS, with woo I'll add EZ, with ill L I'll add ENT। समझ आया? अगर नहीं आया बताओ मुझे फिर से। मतलब अगर मैंने आई स्पीक बोलना है तो आई विल से ज पार्ल, PARL E। अगर यू स्पीक बोलना है त्यू पार्ल, ES। अगर ही शी वी स्पीक बोलना है तो एंड में E। नू बोलना है वी स्पीक नू पार्लो, यू स्पीक वू पार्ले, they speak illal par। Es que se sabe mentano? You understand it? यस मैम, बट ये क्या? दोबारा चलो let's see if anyone can explain। अनुज, बच्चे ये जैसे अब यस मैम। रिगार्ड ER एंडिंग वर्ब है, ये साइड को एक्सप्लेन करो, ये कैसे करी हुई है कॉन्जुगेट। मैम ER एंडिंग हाँ, क्या आगे? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? जैसे बच्चे ये मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही है, ये बस डिफरेंट वर्ब है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्लास में से? शुभम लॉक्टस, यस मैम। कैन यू एक्सप्लेन दिस? मैम जैसे वर्ब है ना रिगार्डर, रिगार्ड दे। तो इसमें से रिगार्ड दे, तो इसमें से ER हटा दिया हुआ है, उसकी जगह लास्ट में मतलब कि मैम जैसे य के साथ रिगार्ड के साथ मैम E लगा दिया, हाँ और ट्यू के साथ रिगार्ड के साथ ES लगा दिया, हाँ इल एल ओ के साथ रिगार्ड के साथ E लगाना है मैम, हम्म और नू के साथ नूज के साथ रिगार्ड के साथ ONS लगाना है, और वो उसके साथ रिगार्ड के साथ EZ, और इल के साथ मैम रिगार्ड के साथ ENT लगाया हुआ है इसमें। हाँ, वेरी गुड। इसमें कुछ टफ था नहीं ना? नो मैम। तो पता नहीं क्लास में बच्चों को समझ क्यों नहीं आता है, इतना बेसिक है ये। मतलब सिर्फ ER कट करना है, जो बेस बचा REGARD तक बचा ना, वो सबके साथ लिख दिया। जहाँ पे ज है वहां पे E, तू के साथ ES, इल एल ओ के साथ E, नू के साथ ONS, ऊ के साथ EZ, इल एल के साथ ENT। बट एनी क्वेरीज इन दिस क्लास? कुछ पूछना है इसमें से? नो नो मैम। मैम। ठीक है। अब देखिए बच्चे,
अब आई टेल यू, सी कि यहाँ पे हमने जे का ई कट करके जे अपॉस्ट्रोफी लगाया हुआ है, वो हमने क्यों लगाया हुआ है बेटा? एच ए लाइक सारे वॉवल्स कौन से हैं? ए ई आई ओ ई और एच को भी वॉवल की तरह ट्रीट करते हैं। तो जब भी कोई वर्ब वॉवल से शुरू हो रहा है तो हम उसका जे का ई कट करके अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं ताकि वॉवल आपस में क्लैश ना हो। अब देखिए एम का मतलब है टू लाइक, अगर मैंने लिखना है आई लाइक तो सी, ज एम है ना, तो सी। ई और ए क्लैश हो रहे थे तो मैंने क्या किया, ई कट करके अपॉस्ट्रोफी लगा दिया, तो दैट बिकम्स जेम। आई लाइक, क्यू एम, यू लाइक, एल एल ओ एम। चलो ये कोई एक्सप्लेन करो, कौन करेगा एक्सप्लेन? टोपो तुम एक्सप्लेन करो, ये ए में वर्ब को एक्सप्लेन करो कैसे किया हुआ है ये। मैम इसमें यहाँ पे जे ई में यहाँ पे ई को डाला है। कहाँ डालना है ई को? कंफ्यूज हो गया हूँ। नहीं आता? यस मैम। और कोई एक्सप्लेन करो, एनीबडी एल्स नो? इसमें मैम जैसे ये एम ए का वो मैम ये है ना, ए है ना, और ज का ई है मैम, तो ये दोनों वॉवल्स है, तो इन दोनों ताकि क्लैश ना करे इसके लिए फिर अपॉस्ट्रोफी लगा दिया होगा ई को हटा के ज के। यस, इट वाज शुभम, शुभम ने एक्सप्लेन किया। यस मैम। ओके बच्चे, सी इसमें कोई ना तो फिजिक्स है ना केमिस्ट्री है ना कोई थ्योरी है, इट इज रियली इजी टू अंडरस्टैंड। यू आर ऑल मेस्ड अप बिकॉज आपने क्लासेस नहीं लगाई है। चलो, जितने भी ईआर एंडिंग वर्ब है वो इसी पैटर्न से सॉल्व करनी है हमें, ठीक है? अब देखिए आबिते का मतलब है टू लिव, जाबीत, आई लिव। यहाँ पे एच और ई क्लैश हो रहे थे क्योंकि एच को भी वोवल की तरह ट्रीट करते हैं। जाबीत, आई लिव, तुआबीत, यू लिव, इलाबीत, ही लिव्स, एलाबीत, शी लिव्स, ओनाबीत, वी लिव, नुजाबितो, वी लिव, वुजाबिते, you live, Elizabeth, they live, Elizabeth, they live. Is it fine? Yes, ma'am. Thank you. अगर मुझे बोलना है एम means to like, j'aime, I like, tu aimes, you like, il aime, he like, elle aime, she like, nous aimons, we like, vous aimez, you like, ils aiment, they like, elles aiment, they like. ठीक है? अब हमारे पास शुभम कितने टाइप्स के थे रेगुलर वर्ब्स? हाँ शुभम, रेगुलर वर्ब्स की टाइप कौन कौन सी थी? 3 टाइप्स के थे मैम। कौन कौन से थे? ई आर एंडिंग, आर ई एंडिंग और आई आर एंडिंग। देखिए अभी हमने ER एंडिंग वर्ब्स किए हैं, नाउ दिस इज RE एंडिंग वर्ब्स, ठीक है? तो इसमें हम पहले आई विल जस्ट रीड द एग्जांपल्स फॉर यू. So it is a tondr, that means to wait, vondr, to sell. As you can see everyone, these all are ending with RE, ठीक है? A tondr, to wait, vondr, to sell, perdre, to lose, tondre, to tighten, entendre, to hear, rendre, to give back, pondre,
to hang, descendre, to descend, fondre, to melt, mordre, to bite. ठीक है, उसके बाद आई विल टेल यू कि आर एंडिंग वर्ब्स को कैसे सॉल्व करना है. देखिए, जस्ट अ मिनट बच्चे, देखिए इसको तो आपको देख के ही समझ आ जानी चाहिए कि कैसे होगा. एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन कि कैसे होगा? देखो स्क्रीन पे, कैन यू डू इट? तो चुंग आप एक्सप्लेन करो. हाँ जी, तो चुंग एक्सप्लेन इट. नहीं, रितिका चलो आप करो. यस मैम. इसमें आर ही वॉन्द्र में आर ई हटा के जब ज के साथ यूज करते हैं, मतलब जब आई के साथ यूज होगा तो वहां पे एस लगेगा. ट्यू के साथ होगा तो आर ही हटा के उसके पीछे एस लगेगा. एल एल ओ वहां पे कुछ नहीं लगेगा, वो सिर्फ वॉन्द ही रहेगा. आर ही भी हट जाएगा और उसके पीछे कुछ नहीं लगेगा. नोज के साथ ओ एन एस लगता है और वो के साथ ई जेड एल एल ई एन टी लगता है. वेरी गुड रितिका, थैंक यू. थैंक यू मैम. Okay, see, but it is that easy. What we need to do? मैम नेटवर्क. ठीक है, तो चुंग. It's okay, तो चुंग. See, बच्चे, see, it is RE ending verb. तो जैसे हमने ER कट किया था, इसमें हम RE कट करेंगे. ठीक है, RE कट कर दिया तो हमारे पास बेस क्या रह गया? VEND. So first of all, we write all the subjects one side. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. ठीक है, उसके बाद we will write the base VEND with all. ठीक है, जहाँ पे je होगा we'll write S, with tu we'll write S, with il, el, on we'll write nothing, with nu we'll write ONS, with vu we'll write EZ, with il, el we'll write EN. ओके, तो पिछले वाले में क्या था? ज के साथ ई था, इसमें ज के साथ एस है. पिछले वाले में ट्यू के साथ ई एस था, इसमें फिर से एस है. ठीक है, एंड अतौंद्र मीन्स टू वेट, वॉन्द्र मीन्स टू सेल. ये हो गया आई सेल, यू सेल, ही सेल, शी सेल, वी सेल, यू सेल, दे सेल. अतौंद्र मीन्स टू वेट. ठीक है, तो इसमें से अगेन वी विल कट आरी एंड अगेन ये वोवल क्लैश हो रहा है तो जे अपॉस्ट्रोफ आ जाएगा. आई, यू, ही, शी, वी, नो, वो, il, elle. ठीक है, je tente, tu attends, il, elle attend, nous attendons, vous attendez, ils attendent, elles attendent. ठीक है, so this is how you will conjugate all the re ending verbs. तो अगर एग्जामिनर ने बोला कि वॉन्द्र वर्ब को कॉन्जुगेट करके दिखाओ, you have to do this. You have to write all the, like, say all the subjects and the verb along with their verb formation. Any queries in this, bache? Please, you may ask. तो नेक्स्ट है IR एंडिंग. तो IR एंडिंग कौन सी है? All the verbs that ends with IR are IR ending. ठीक है, so इसकी examples हैं choisir, to choose, envahir, to make beautiful, envahir, to invade, établir, to establish, étudier, to stun, finir, to finish, franchir, to clean an obstacle, grandir, to grow up,
grossir to gain weight, gerir to cure, investir to invest. So ये कौन explain करेगा? Anybody explain IR ending verbs? Topo, you going to do that? Yes, ma'am. Okay. मैम इसमें tutor Shwazir. इसमें Shwazir. आई आर को हटा देगा। हाँ. इसके बाद इसमें प्रोस्तोपी लगा के उसको ऐसा बनाएगा ना। फिर से इसमें चूज इसमें CHO लगा के उसके आइस को हटा दे। उसके बाद एस लगाएगा इसमें। हाँ. ऐसा है क्या मैम? हाँ हाँ ठीक है। जो उसके के बाद साथ इस लगाएगा, तू के साथ टू के साथ इसको भी आई एस को हटा देगा क्या मैम? आई आर को कंफ्यूज हटाएगा, आई एस को नहीं हटाएगा। उसके बाद एस डालेगा इसमें। हाँ नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे इल एल ऑन में इसमें भूल गया। इसमें भी मैम आई एस को हटा देगा इसमें। और आई टी लगाएंगे। हाँ आई टी लगा देगा उसमें। इसके बाद इसमें भी आई एस हटा देगा। OUS लगा देगा। OUS कहाँ कंफ्यूज हो गया मैं। OUS मैम कहाँ आई आर हटाना है, आई एस थोड़ा हटाना मैम, आई आर आई हटाना। हटा है। हाँ अनुज तुम एक्सप्लेन करो सारा। मैम जैसे जो फर्स्ट है जे के साथ मैम आई एस लगाएंगे, और मैम ट्यू के साथ मैम आई एस ही है, और इल अन के साथ मैम आई टी, और मैम नो के साथ मैम ISSONS, एंड वो के साथ ISSEZ, एंड इल एल के साथ मैम ISSENT। वेरी गुड अनुज। सी आपको इतने अच्छे से स्लाइड्स बनी हुई है, देख के ही पता चल रहा है कि क्या क्या करना है। इजी है ना ये अनुज? यस मैम। सो अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा कि रेगुलर वर्ब्स की टाइप्स बताओ, तो कौन कौन सी बताओगे? ER एंडिंग वर्ब्स, RE एंडिंग वर्ब्स एंड IR एंडिंग वर्ब्स। ठीक है। फिर इफ एग्जामिनर आस्क कि ER एंडिंग वर्ब्स की एंडिंग्स क्या है, तो आपको बताना होगा ज के साथ वी पुट ई, त्यू के साथ ES, इल एल ओ के साथ E, नू के साथ ONS, वो EZ, इल एल के साथ ENT। फिर RE की एंडिंग्स, फिर IR की एंडिंग्स। ठीक है। ओके ओके। यहाँ रेगुलर वर्ब्स में किसी की कोई क्वेरी हो? नो? मैम जो ये पीछे मैम जो RE मैम, ये तो ये IR है ना, RE वाले में था मैम थोड़ा सा। क्या था बच्चे उसमें? मैम वो जो ये जो मैम लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, ये वो क्या ये? मैम। हाँ जी मैम, अटेंड एक वॉन्ड्रे है ना मैम, एक ये दूसरे वाला है जो इसमें। क्या है इसमें? ठीक तो है। शो के साथ हैस, क्यू के साथ हैस, इल एल लॉन्ग के साथ कुछ भी नहीं, नू के साथ ONS, वू के साथ EZ, इल एल के साथ हो ENT। इसमें क्या था? ठीक है मैम, वो थोड़ा सा था। बोलो ना, मैं बताती हूँ, पूछो। ये तो मैम मेरे को पता लग गया है ऐसे कि जे के साथ जैसे ये ER में क्या लगना है और IR में जो अलग अलग है, ये तो याद रखने पड़ेंगे। हाँ IS फिर क्या रह गया? हो गया मैम, कुछ नहीं। मीनिंग पूछना था आपने भी। मीनिंग क्या है इसका? नहीं मैम, मीनिंग नहीं, शायद ये नहीं था वो मैम, पीछे वाला था मैम, छोड़ो पर कोई नहीं। नहीं बेटा पूछो क्या था इसमें। ये वाला या ये, यही किया है हमने।
एक आर एंडिंग में शायद ये था, ई आर एंडिंग में था शायद वो मैम, सबसे पहले जो आपने मेरे से पूछा था ना मैम, वो मेरे को आया नहीं था, वो ही वाला शायद, वो मेरे को समझ तब भी नहीं आया। तो ये रहा ईयर एंडिंग। इसमें क्या है, जहाँ पे ज होगा वहां पे मैम ई। ये वाला ए तो एम ये वाला। हाँ अच्छा, ये वॉवल क्लैश वाला नहीं समझ आया यस मैम, ये क्लास क्या है, बच्चे? कुछ सी पता नहीं लगा। वैसे तो आई, आई क्या होता है, जे और ई दोनों का मतलब आई होता है ना, मतलब ये वर्ड है आई, जे और ई है। बट अब देखो, वर्ब वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना, दैट इज ए। ये ई से खत्म हो रहा है, ये ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल क्लैश हो रहे हैं ना दोनों। तो ये खत्म करने के लिए हम पिछला ई खत्म कर देते हैं, उसकी जगह अपॉस्ट्रोफ लगा देते हैं। ठीक है? ओके ओके। हाँ, बाकी तो बताइए आपको, ई, ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड, ई एन टी। ये तो पता है। ठीक है। Now we'll do articles. So now we will revise l'article défini, definite article, which is the. इंग्लिश में होता है ना द, तो बच्चे सी इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम द? हर चीज के साथ हम द लिख सकते हैं, चाहे वो लड़का है द बॉय, चाहे लड़की है द गर्ल, the boy, the girl, the pen, the table, the wall, the stairs, the chair, कुछ भी हो हम द लिख सकते हैं। बट फ्रेंच में क्या होता है, हर चीज, चाहे वो लिविंग थिंग है चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है, वो उसके साथ हमने हर चीज, पहले तो मेल और फीमेल में डिवाइडेड होते हैं। लड़का लड़की का तो चलो पता ही है, वो मेल फीमेल होते हैं इंसान तो। बट जो नॉन लिविंग चीजें हैं उनका भी उन्होंने मेल फीमेल डिसाइड किया होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, यह कुर्सी है, तो हमें पता है कुर्सी इज फेमिनिन। यह मेज है, मेज हमें पता है कि ये मैस्कुलिन है। और जैसे कि यह कार है, तो हमें पता होता है। दरवाजा हमें पता है कि लड़का है। तो फ्रेंच में भी हर चीज मेल या फीमेल होती है। तो अगर हमने किसी मेल चीज के लिए द यूज करना है तो हम यूज करेंगे ल, एल ई ल। अगर हमें किसी मेल चीज के साथ द यूज करना है हम यूज करेंगे ल। अगर किसी फीमेल चीज के साथ हमें द यूज करना है हम यूज करेंगे ला। We will use ला। अगर किसी प्लूरल चीज के साथ द यूज करना है we will use ले, ले। एंड वोवल, अगर कोई चीज हमारी वोवल से स्टार्ट हो रही है तो हम एल अपॉस्ट्रोफी यूज करेंगे ताकि वोवल क्लैश ना हो। समझ आया? एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ आएगा, मैं अभी करवाती हूँ। ये देखिए, अब देखो ये ना वोकैबुलरी है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ठीक है। फादर इज, अब देखिए फादर मेल, फादर मेल है, तो मेल वाला द कौन सा है हमारा, ल, तो हम लिखेंगे ल पैर। अब मदर फीमेल है, तो फीमेल का द कौन सा बताया था मैंने, ला, तो द मदर लिखना है तो वी विल यूज ला मैर, ठीक है। यस मैम। अब पेरेंट्स है, पेरेंट्स सब एक से ज्यादा है होते हैं, मम्मा और पापा दोनों, प्लूरल हो गया ना। प्लूरल के लिए कौन सा द यूज करना है हमने, ले, एल ई एस, ले, है ना। तो ये आ जाएगा ले पार हूं। अब फादर के लिए कौन सा यूज करेंगे हम, ल, बिकॉज फादर इज मेल। समझ आया? यस मैम। ओके, लेट्स आस्क समवन। अविनव बताओ, सिस्टर के लिए हमने ला, यस मैम, ये क्यों यूज किया ला? क्योंकि सिस्टर फेमिनिन है मैम। वेरी गुड। एंड फेमिनिन द कौन सा है, ल, ला। एंड ला, मैस्कुलिन, सॉरी, मैस्कुलिन द कौन सा है अविनव, ला, ल। और प्लूरल द कौन सा है, ले,
वेरी गुड। अगर वॉवल से कोई चीज आ रही है तो कौन सा आएगा? L apostrophe. ब्रावो, वेरी गुड। सो अगर आपको एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, तो आप बोलोगे मैस्कुलिन द इज ल, फेमिनिन द इज ला, plural the is lay, and L apostrophe will be using with if the word starts with vowel. Clear? समझ आ गया बच्चे? Yes, अब ma'am. देखिए, ऑलराइट। सो मॉम इज, अब मॉम हमारा फेमिनिन है, ला मामो। लड़का है, द बॉय, ल गार्सो। गर्ल है, लाफी, आई मीन फेमिनिन है तो ला। देखिए बच्चे, रिवीजन में ये जल्दी जल्दी हो रहा है, बट हमने हर चीज को एक एक दिन में अच्छे अच्छे से किया है। मतलब क्लास में बच्चे आते थे, सौरभ, रितिका, पल्लवी, तो दे नो एवरीथिंग। इट्स इन हरी बिकॉज ऑफ दिस इज, कल आपका लास्ट लेक्चर है, तो अगर आप सारे लेक्चर लगाते तो आपका अच्छा होना था, बट एनीवेज। ब्रदर, लव फ्रेयर, सिस्टर, ला सर, son, la fils, daughter, la fille, children, les enfants, husband, le mari, wife, la femme, grandfather, le grand-père, grandmother, la grand-mère, grandson, le petit-fils, granddaughter, la petite, uncle, l'oncle, aunt, la tante, nephew, le neveu, niece, la nièce, cousin, le cousin, feminine cousin, la cousine, stepfather, le beau-père, stepmother, la belle-mère, stepdaughter, la belle-fille, stepson, le beau-fils। बच्चे इसमें कोई confusion? You wanna know something? No. No. Anybody, any query? No, ma'am. So, अच्छा बच्चे, वो थे डेफिनेट आर्टिकल, एंड इनडेफिनेट आर्टिकल है ए। ठीक है, तो मैस्कुलिन ए इज अ, फेमिनिन ए इज उन, प्लूरल वन इज दे। अब देखिए प्लूरल में तो ए हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम ए बॉयज तो कह ही नहीं सकते, ए गर्ल्स तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि ए तो ऑलरेडी वन होता है। तो इसके लिए प्लूरल वाला हम रखेंगे सम, SOM, आई मीन some boys, some girls। ठीक है, जस्ट पहले मैं आपको दूसरी एग्जांपल्स करवा दूं। पहले मैस्कुलिन द की एग्जांपल्स जो कि नॉन लिविंग है। तो बच्चे हमें लाइक ह्यूमन बीइंग्स में तो पता चलता ही है कि कौन लड़का है, कौन मैस्कुलिन है, कौन फेमिनिन है। नॉन लिविंग थिंग्स में कैसे पता चलेगा? नॉन लिविंग थिंग्स में हमें पता चलेगा जो वर्ड्स ई से खत्म होते हैं वो फेमिनिन होते हैं, जो वर्ड्स ई से नहीं खत्म होते हैं दोज आर मैस्कुलिन। ठीक है, अब देखो पेन है, बट ये रिजिड रूल नहीं है। 75% फ्रेंच में 75%, मतलब 25% इज द एक्सेप्शन। ओके, अब देखिए पेन है स्टीलो, इट इज नॉट एंडिंग विद ई, दैट्स व्हाई लव। लिव्र, बुक, that is ending with e but it falls in masculine category। I told you 75%, not all। ठीक है,
Then comes le salon. Salon is the living room. ठीक है? Le living room. Le jardin, the garden. Le bureau, the desk. Le père, the father. Le fils, the son. Le cousin, the cousin. Then आ गया la. La chaise, the chair. अब देखिए ये सारे वर्ड्स ई से खत्म हो रहे हैं बस एक को छोड़ के और ये सारे फेमिनिन हैं. La chaise, the chair. La porte, the door. La femme, the woman. La fille, the girl. La table, the table. La bibliothèque, the library. La maison, the house. La cuisine, the kitchen. अब देखिए the girls, the boys सारे plural वाले हैं तो les filles, les garçons, the boys, the girls, the chairs, the doors and so on. And l'apostrophe वाले होंगे जो सारे vowel से शुरू होंगे. ये देखो सारे word vowel से शुरू हो रहे हैं ना तो इसमें आ जाएगा l'apostrophe. L'oncle, uncle, l'ami, friend, l'ordinateur, computer, l'école, school, l'eau, water, l'amour, love, l'université, university, l'après-midi, afternoon. You want to know something, Garage? कुछ पूछना है इसमें से? नो मैम. Okay. मैम